Yes, beta, this is the second video for your chapter number 13, the final victory. Let's start. For kite runners, the most coveted prize was the last fallen kite of a winter tournament. So here again they're talking about the kite runners only, that what is the biggest prize for them. Coveted means biggest or greatly desired. So it is the last kite, right? It was a trophy of honor. मतलब अगर उनको कोई कटा हुआ पतंग मिलता है उनके लिए वो ऑनर है और वो उसको मेंटल में रख लेते हैं अपने गेस्ट को, मेहमानों को दिखाने के लिए, एडमायरेशन लेने के लिए, सराहना लेने के लिए. Mantle is kind of a shelf, on the fireplace. When the sky cleared of kites and only the final two remained, every kite runner readied himself for the chance to land this prize. Means obviously when the last moment come, when only the two final kites are in the sky, the kite runners are there to get the prize. And what is the prize? To get that final cut kite. He positioned himself at a spot that he thought would give him a head start. Means वो अपने आप को position कर लेते हैं कि where if the kite will be cut down, where it will fall down. Tense muscles readied themselves to uncoil. Means their muscles are tight, but they used to uncoil them. They relax themselves. Next crane mean crane is a bird over here. Next crane means over here means they are very attentive. Eyes wrinkled over here means crumpled. Okay, fights broke out, and when the last kite was cut, all the hell broke loose. Means when the last kite was cut, all chase the kite. Over the years, I had seen a lot of guys run kites, but Hassan was by far the greatest kite runner I had ever seen. So here Amit talks about that he has seen. According to him, Hassan is the greatest kite runner. It was downright array. Array here means strange. The way he always got to spot the kite would blend before the kite did, as if he had some sort of inner compass. Amir added saying that Hassan has a quality that he has kind of some sort of a compass inside his body, that he came to know that where the final kite will be, down where it will fall. तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि कटा हुआ पतंग कहाँ गिरने वाला है, तो वहाँ पे वो पोजीशन लेता है. द डे ऑफ द टूर्नामेंट डॉन्ड, स्ट्रीट्स ग्लिसेंड. मतलब जिस दिन टूर्नामेंट है सुबह हो गया जल्दी. स्ट्रीट्स ग्लिसेंड विद फ्रेश, ग्लिसन मीन्स शाइन, विद फ्रेश स्नो एंड द स्काई वॉज ब्लेमलेस ब्लू. स्काई ब्लू है. स्नो ब्लैंकेड एवरी रूफ टॉप. मतलब विंटर्स का टाइम है, अफगानिस्तान में बेटे बहुत स्नो होती है, तो एवरी रूफ मतलब छतों पे पूरी स्नो हुई पड़ी है. You can see in the picture also. And weighed on the branches of the, here you're talking about the weather कि कैसा मौसम है. स्नो जो छतें हैं स्नो से कवर्ड हैं बेटे. ब्रांचेस के ऊपर भी स्नो पड़ी हुई है. और जो मलबरी ट्रीज हैं जिनके आसपास घरों के मलबरी ट्रीज लगे हुए हैं. मलबरी मीन्स शहतूत. स्टंटेड मीन्स इनको उनकी उन्हें बढ़ने के लिए रोक दिया गया है, ठीक है ना. तो उनके ऊपर भी स्नो बहुत पड़ी हुई है. आई हर्ड बाबा मटर अ प्रेयर. मटर मीन्स बोलना, गुनगुनाना. बाबा हियर मीन्स Amir's father. So Amir saw that his Baba is saying some prayer. He always said a prayer when I left the house. I had never seen so many people on our street. वो कहता है कि जिस दिन ये टूर्नामेंट हुआ स्टार्ट, मैंने इतने लोग नहीं देखे अपनी गली में. किड्स वर फ्लिंगिंग स्नोबॉल्स. फ्लिंगिंग मीन्स फेंकना. वो एक दूसरे के ऊपर गलियों में स्नो की बॉल्स बना के फेंक रहे हैं. स्क्वेबलिंग मीन्स आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं. चेजिंग वन में तो एक दूसरे को पीछा कर रहे हैं. गिगलिंग मीन्स लाफ कर रहे हैं वो. काइट फाइटर्स वर हडलिंग विद देयर स्पूल होल्डर्स एंड मेकिंग लास्ट मिनट प्रेपरेशंस. एंड व्हाट द काइट फाइटर्स वर डूइंग, दे वर क्राउडिंग टुगेदर, ठीक है, अपने स्पूल होल्डर्स में चरखड़ी के साथ. एंड लास्ट मिनट की जो प्रेपरेशंस है कॉम्पिटिशन में वे कर रहे हैं. फ्रॉम adjacent streets I could hear laughter and chatter. Amir says that कि adjacent means साथ के साथ जो आसपास की जो गलियां हैं वहाँ से मुझे लाफ्टर और बातों की आवाज़ बहुत आ रही है. Already rooftops were jammed with spectators reclining in lawn chairs, hot tea steaming from thermoses. Now he talks about
हमें टॉक्स अबाउट दैट कि जो रूफ है वो छतें हैं वो पूरी भरी हुई हैं स्पेक्टेटर्स के साथ जो देखने आए हैं, और कैसेट प्लेयर्स भी चल रहा है, ठीक है, और वो अपनी लॉन चेयर्स पे बैठे हैं, थर्मस उनके पास है जिसमें से वो चाय पी रहे हैं गरम, और म्यूज़िक लगाया हुआ है किसका, कैसेट प्लेयर से अहमद ज़हीर का, इज़ अ म्यूजिशियन और यू कैन से अ सिंगर। आई टर्न माई गेज टू अवर रूफ टॉप, मेरे नज़र मेरी छत पर जाती है, मैंने देखा कि मेरे बाबा और रहीम खान इज़ द फादर ऑफ हसन, राइट। दे सिटिंग ऑन द बेंच, दोनों ने सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं, चाय पी जा रही है, सिपिंग टी, बाबा ने वेव किया, हाथ हिलाया। आमिर कहते हैं मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी तरफ हाथ हिलाया या हसन की तरफ हाथ हिलाया है। वी शुड गेट स्टार्टेड, हसन सेड, हसन ने कहा हमें स्टार्ट करना चाहिए कंपटीशन के लिए, वी शुड ऑल्सो डू द लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। ही वोर ब्लैक रबर स्नो बूट्स एंड ब्राइट ग्रीन छप्पन ओवर अ थिक स्वेटर एंड फेडेड कॉर्डरॉय पैंट्स। तो उसने क्या पहना, उसने ब्लैक कलर के स्नो बूट्स पहने, छप्पन इज़ अ काइंड ऑफ अ कोट, ठीक है, स्वेटर के ऊपर उसने कोट पहना, और उसने कॉर्डरॉय की पेंट्स पहनी फेडेड। सनलाइट वॉश्ड ओवर हिज फेस एंड इन इट आई सॉ हाउ वेल द पिंक स्कार अबव हिज लिप हैड हील्ड। मतलब उसके ऊपर जो उसके लिप के ऊपर एक पिंक स्कार था, एक जख्म था, एक कट था, वो हील हो गया था बिकॉज ऑफ द सन लाइट। Suddenly I wanted to withdraw, pack it all in, go back home. Now who is saying? Amir is saying that I want to withdraw. I don't want to take part in the flying competition, kite flying competition, because he was nervous. He know that what is the result. उसको पता कि वो fail हो जाएगा. He will not be the winner. He will be the loser. That's why he want to withdraw from the competition. It is all written. Let's see it out. What was I thinking? Why was I putting myself through this when I already knew the outcome? मुझे पता है रिजल्ट क्या होने वाला। आमिर कहता है बाबा was on the roof watching me. I felt his glare on me like the heat of a blistering sun. कि मुझे उनकी चमक मुझ पे पड़ती नज़र आ रही है ना, जैसे कि एक एक्सट्रीम ब्लिस्टरिंग ओवर हियर मीन्स इंटेंस एक्सट्रीम सन की जो हीट होती है उस तरह मेरे ऊपर भी पड़ रही है मेरे पापा की ग्लेयर। दिस वुड बी फेलियर ऑन अ ग्रैंड स्केल इवन फॉर मी। मतलब अगर मैं फेल होता हूँ इस कंपटीशन में, मेरे लिए भी सबसे बड़ी ज़्यादा ये शर्म की बात होगी। आई एम नॉट श्योर आई वांट टू फ्लाई अ काइट टुडे, आई सेड कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, हसन सेड। यहाँ पे घबरा जाता है आमिर और कहता है कि शायद मैं काइट नहीं उड़ा पाऊंगा, तो हसन उसको इनकरेज करता है कि बहुत अच्छा दिन है। आई शिफ्टेड ऑन माई फीट, ट्राई टू पील माई गेज अवे फ्रॉम आवर रूफ टॉप, आई डोंट नो मे बी वी शुड गो होम। सो मीन्स वह अपनी निगाहें रूफ टॉप से छत से हटाना चाहता है। कौन? आमिर। ही शिफ्टेड हिज फीट, ही सेड दैट आई should go home, I should leave the competition. Then he stepped toward me and he in a low voice said something that scared me little. Who came? Hassan came to Amir and कुछ उसने धीरे सी आवाज़ में बोला जिससे कि मुझे थोड़ा सा डर लगा। Up to here I hope you have understood. Thank you.